Hi guys, so we'll be starting with lesson 21, that is the fresh start process. Now let's understand in short what is fresh start process. First of all, this is a process for two people, individuals and partnership firms. Okay, so two people can opt for fresh start process. One is individuals and firms. अभी इसमें होता क्या है, the when they have taken loans, okay, when they have taken a loan of a very small amount. So let's say there are small loans taken, small loans by relatively small people. When I'm talking about small people, means they are not that rich, they don't have a certain assets, they don't have a certain income. So pretty low income groups, when they take a loan and they cannot pay and they get stuck in the debt trap, you all tell me, ये लोग का लोन माफ कर देना चाहिए कि ये लोग के पीछे जाके पूरा रिकवर करना चाहिए? Normally think. So we are talking of individuals who have taken a very small loan and that person is also very in the low income group. तो उनका लोन माफ करके उनको फ्रेश लाइफ देना चाहिए कि उनके पीछे रिकवरी करनी चाहिए? You all can unmute and tell. Sorry? Yeah, so then we give them a second life. We tell them ठीक है यार, छोटा लोन है, तुम भी छोटे इंसान हो, माफ किया, दूसरी बार be careful, don't do such a thing. So now this thing, you tell me who will object to this thing? This kind of concept पे कौन object करेगा? Creditor या debtor? Creditor. He'll say what nonsense, छोटा लोन लिया है तो क्या है, मैंने पैसे दिए. But law in greater good, in the interest of all these small income groups, tell them that we are going to give them a fresh charge, we will give them a discharge from the loans. So it is filed, ये जो fresh start process कौन file करता है? By debtor. The debtor files it and it is objected by creditor. Creditor objects it. Okay, और ये पूरा जो झगड़ा होता है किधर चलता है? पूरा मैटर जो चलेगा वो होगा बिफोर द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, हु इज द adjudicating authority here. So if DRT will appoint a resolution professional, they will say जाके देखो ये सही बोल रहा है क्या, छोटा लोन है और खुद भी छोटा बंदा है, अगर सब सही हो गया तो उसको माफ कर दो, डिस्चार्ज कर दो लोन में से, and we'll tell the creditor we are very sorry but we are trying to discharge the debtor here. समझ में आया? So let's see what are the provisions here. First thing, lesson 21, fresh start process. It is all covered on the insolvency bankruptcy code. From here, can you tell me in which part will it be for insolvency of individuals and partnership firms? Part 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा वाला part होगा? So it covers your part 3. So from section 77 to 187, insolvency of this. अब इसके अंदर भी part 3 के अंदर में भी further breakdowns है. So part 3 has a total of how many chapters you can see? Part 3, that is insolvency of individuals and partnership firms, has a total of 7 parts. इसमें से मुझे बोल सकते हो fresh start process कौन से chapter में दिया हुआ है? So we are seeing part 3, chapter 2, from section 80 to section 93. समझ में आया? तो this is all that we have to know. So part 3, chapter 2, section 80 to 93. अब इसमें होता क्या है, जब भी कोई इंडिविजुअल की बैंक्रप्सी होती है, whenever individual और पार्टनरशिप फर्म, that is a नॉन कॉर्पोरेट पर्सन, अगर इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट हो जाते तो दे कैन ऑप्ट फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस. फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में क्या होता है, लॉ गिव्स देम अ फ्रेश स्टार्ट, दे कैन लिव देयर लाइफ विदाउट एनी लायबिलिटीज हेंसफोर्थ. खाली एक चीज होगा, उनके क्रेडिट हिस्ट्री में आ जाएगा कि बंदे के ऊपर फ्रेश स्टार्ट हुआ था, उसके लोन माफ कर दिए गए थे, तो आगे से लोन उसके लेने के लिए मुश्किल हो जाएंगे. क्लियर है इतना? तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी. नाउ टेल मी वन थिंग, विल द डेटर लाइक दिस प्रोविजन और नो? डेटर को अच्छा लगेगा कि उसके लोन माफ कर दिए और उसको एक फ्रेश स्टार्ट दिया? यस और नो? So the debtor really enjoys his provision.
So the debtor will enjoy the provision. He'll say he is getting a fresh start, fresh life for the loan amount. Now he gets discharged from the debts that he owned. He gets freed. Now he doesn't have to pay it anymore. So this is a good thing from the debtor. He's going to, mostly the IBC laws are favoring the creditors. This fresh start is favoring the debtor. You think हर debtor को ये और debtor उसका debt से free हो जाएगा? Now tell me one thing. You think बड़े बड़े loans को ऐसे माफ कर देना चाहिए कि छोटे छोटे लोन्स होंगे? तो ये छोटे लोन्स होते हैं. देखते कौन ऑप्ट कर सकता है फॉर दिस फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस. तो लोन भी छोटा होना चाहिए, बंदा भी छोटा होना चाहिए. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इनकम कितनी है? इनकम इज लेस देन 60,000 एनुअल इनकम. सोचो लेस देन, पूरे साल में उसकी इनकम लेस देन 60,000 है. फिर सेकंड लिमिट क्या है? उसके पास में एसेट्स भी नहीं है. एसेट्स भी लेस देन 20,000. ओके, ही डजंट इवन ओन अ हाउस, डज नॉट ओन अ ड्वेलिंग हाउस. हो सकता है पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, दे हैव नथिंग. तो डू यू थिंक मेनी पीपल मस्ट बी कमिंग हियर? दे डोंट हैव एनुअल इनकम ऑल्सो वेरी लो. एसेट्स भी उनके पास में कितने के हैं? नॉट मोर देन 20,000. एंड वो लोग ने लोन भी कितने का ले रखा है? नॉट एक्सीडिंग 35,000. तो लोन भी 35,000 तक ही है. एसेट्स उसके पास में 20,000 से कम है और उसकी इनकम भी बहुत ही कम है. दूसरे कंडीशंस भी है. ही शुड नॉट बी डिस्चार्ज, नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, ही शुड नॉट बी ओनिंग अ हाउस, ही हैज नॉट in the previous 12 months opted for this fresh start process. So in all these cases the eligibility is given. Eligibility कौन से सेक्शन में दिया है? Section 80. You tell me, are big players coming here? First, no. Secondly, are big loans coming here? Again, no. These are small people who law wants to discharge them. ये लो भाई आप जाओ. ठीक है, तो ये लोन्स एलिजिबिलिटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. अब प्रोसेस क्या होगा इसका? नाउ सबसे पहले एक केस फाइल होगा, DRT. पूरा जो मैटर है कौन सी कोर्ट के पास में जाएगा? इंडिविजुअल एंड फर्म का डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. टेल मी, हु विल बी इंटरेस्टेड टू फाइल दिस फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस? क्रेडिटर और डेटर? डेटर. So the debtor files by himself or debtor files with the help of a resolution professional. So application for fresh start process to adjudicating authority is your DRT, is filed by the debtor himself or by a resolution professional. तो debtor फाइल करता है. जैसे फाइल करता है एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा. अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्यों अपॉइंट करेंगे? टू वेरीफाई कि सच बोल रहा है क्या, छोटा है, नहीं तो बड़ा लोन है, कुछ और है, तो एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लाइक अ CA, CS, CW आर अपॉइंटेड टू चेक whether this guy is a honest guy, whether all the information he has disclosed is correct, his loan is also within that 60,000, 35,000 and 20,000, three limits that you need to know. Okay, assets, income and his own debts, all three are within the limits. Then he'll make a report and send it to the adjudicating authority. Adjudicating authority, if satisfied, will accept the application. और accept कर देंगे तो फिर बाद में एक मोराटोरियम डिक्लेयर होगा कि उस दौरान जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आता है. ओके, बिकॉज द क्रेडिटर्स जैसे एडमिट करेंगे, दे विल आस्क द क्रेडिटर इफ यू हैव एन ऑब्जेक्शन, विच ही विल. और क्रेडिटर के पास में भी बहुत कम ऑप्शंस है to oppose this. He can only oppose if the information is incorrect or it is not within the thresholds. Okay, otherwise वो माफी हो जाता है. तो 180 डेज के अंदर मोराटोरियम होगा. 180 डेज का मोराटोरियम मतलब क्या? एक स्टे ऑर्डर हो जाएगा. जैसे DRT ने मैटर उठाया, 180 डेज तक स्टे ऑर्डर होगा. नो फ्रेश केसेस, एवरीथिंग विल बी एट अ हॉल्ट, नो ट्रबलिंग द डेटर एट ऑल. ओके, now let's see. फिर एंड में क्या आएगा? द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग, द डिस्चार्ज ऑर्डर. ओके, मोराटोरियम कितने दिन में खत्म होगा? यहां पे 180 डेज. 180 डेज के पहले 7 days बिफोर
एक रिपोर्ट बनेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर अ फाइनल लिस्ट ऑफ द डेट एट लीस्ट 7 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मोराटोरियम। तो मोराटोरियम के पहले 7 दिन पहले एक रिपोर्ट बनेगा कि कितना बंदे के पास में लोन्स, डिटेल्स क्या क्या है, और अगर सब कुछ सही हुआ, एलिजिबल है सेक्शन 80 के अंदर, ओके, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो भी 80, 81 के अंदर दिया है, तो एक डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाएगा। व्हाट डू मीन बाय डिस्चार्ज? इट्स अ रिलीज ऑर्डर, माफ करने वाली बात। क्या क्या माफ हो जाएगा? लोन अमाउंट माफ हो जाएगा, पेनल्टीज माफ हो जाएगी, इंटरेस्ट माफ हो जाएगी, एनी सम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ माफ हो जाएगा। अभी ये लोग ने क्या बोला है कि ओनली क्वालिफाइंग डेट माफ होगा, डेट माफ होगा, बट दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड डेट, दे हैव यूज्ड द वर्ड qualifying debt, means that debt which can be waived off। तो इसका मतलब है कौन सा डेट वेव ऑफ नहीं हो सकता है? तो जो एक्सक्लूडेड डेट है, द डेटर शैल नॉट बी डिस्चार्ज ऑफ द एक्सक्लूडेड डेट। तो समझना पड़ेगा ये क्वालिफाइंग डेट क्या है, डिस्चार्ज डेट क्या है। तो अभी देखते हैं क्वालिफाइंग डेट क्या दिया है। सेक्शन 79 डेफिनेशन जो सेक्शन है, सब सेक्शन 19 के अंदर दिया हुआ है, व्हाट इज अ क्वालिफाइंग डेट। सो क्वालिफाइंग डेट इज अ डेट विच इज नॉट एन एक्सक्लूडेड डेट, which is not a secured debt, and which is not debt incurred in the within 3 months prior to filing this case, prior to filing this fresh start process। समझते हैं, debt includes everything, कुछ भी debt रहेगा वो within the limit सब count होगा, but does not include, so it does not include, क्या क्या include नहीं करता है? excluded debt, ये सब माफ नहीं हो सकता है। सिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड डेट के लिए भी फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर तुमने डेट इनकर्ड 3 months प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। समझते एक एक। आफ्टर रीडिंग दिस, क्वालिफाइंग डेट माफ होता है, तो क्या क्वालिफाइंग डेट सिक्योर्ड डेट हो सकता है? रीड द डेफिनेशन एंड टेल मी। आर जो माफ, द वेविंग ऑफ, द डिस्चार्ज ऑर्डर, कैन इट बी गिवन फॉर सिक्योर्ड debts or unsecured? Read the provision and tell. Unsecured. Very good. So it is for unsecured debts माफ होगा, not secured। ठीक है, तो सिर्फ unsecured debts माफ हो सकते हैं यहां पे। सेकंड, excluded debt। अब excluded debt भी नहीं होगा, ये सब में तुमको waiving off नहीं मिलेगा। तो देखते हैं excluded debt क्या होता है। तो excluded debt is given here in section 79 subsection 15। क्या ये सब डेट माफ हो सकता है? Are these qualifying debts? Qualifying मतलब they are qualified to be waived off, so these are not qualified to be waived off। तो कौन सा रहेगा? A fine imposed by court, any damages for negligence, any maintenance required to be given under any law, husband wife का कोई भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। स्टूडेंट लोन को वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं। सोचो मैंने स्टूडेंट लोन लिया और सब एग्जाम्स में फेल हो गया, और अभी मैं क्या फ्रेश स्टार्ट में अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी अगर इंसॉल्वेंसी की बात आ रही है तो। सो इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग डेट, इट कम्स अंडर द एक्सक्लूजन, इट्स अ एक्सक्लूडेड डेट। ये में फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसकी माफी नहीं मिल सकती है। एंड एनी अदर डेट विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आर वी क्लियर विद दिस? सो लेट्स टेक अ समरी एंड देन वील स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर विद द टाइमलाइन। फर्स्ट थिंग इज, ये वाला प्रोविजन जो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस इज गिविंग द डेटर, इट्स ऑल इन फेवर ऑफ द डेटर्स। डेटर का माफी कर रहे हम लोग, और डेटर को बोल रहे भाई फ्री, यू आर अ फ्री बर्ड नाउ, यू डोंट हैव टू पे योर डेट, यू आर रिलीज फ्रॉम द डेट ओन। ये कब करेंगे? जब तुम वो लिमिट के अंदर हो गए, एलिजिबिलिटी, यू आर फ्रीड फ्रॉम योर डेट। बट एलिजिबिलिटी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, you need to know it by heart. Your income is only 60,000, your assets are not exceeding 20,000, your debt amount is also taken is not exceeding 35,000. If all these conditions are there, you can opt for fresh start process. Now let's see, we'll go through the module and complete it.
Now, let's see fresh start process. Can a corporate file for fresh start process, or it is only for individuals and firms? Individuals and firms. Okay, it is filed by daters or the resolution through a resolution professional, and the creditors have a right to object. So let's see. So section 80 to 93 in chapter 2 of part 3 of IBC deals with this fresh start process. So we were seeing here so it is part 3 section 80 to section 93. Under this, automatic fresh start process is eligible dators can apply to the adjudicating authority for the discharge from the debts not exceeding the limit and can start afresh without any liabilities. तो वो लोग अपनी लाइफ वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं, खाली उनकी क्रेडिट हिस्ट्री में लिख देंगे कि बंदे का इसका माफी हुई थी लोन की, ठीक है. तो वो लोग लिमिट्स दिए, इट शुड नॉट एक्सीड 3 लिमिट्स थे, 60,000, 20,000 and 35,000, which we will see when we do. Who can file for this fresh start process? Only the dater can file for this. Resolution professional को अपॉइंट करेंगे तो उसका क्या काम रहेगा? He will examine the application कि भाई सही बोल रहा है कि नहीं, and he will make a report to the DRT, और DRT ऑर्डर पास कर देगा. जब DRT ऑर्डर पास करेगा, इट विल एडमिट दी एप्लीकेशन कि भाई साहब सही बोल रहे हैं, छोटे हैं और लोन भी छोटा है, इनका माफी बनती है इनकी. तो कौन ऑब्जेक्ट करेगा इसको? जिसने लोन दिया है, क्रेडिटर्स. दे विल से व्हाट नॉनसेंस. तो क्रेडिटर्स हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट. आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज, DRT will pass an order, and if they feel that everything is correct, that it is within the eligibility to waive off, then they will waive off the discharge the debtor from the debts. Okay, but so the discharge order rights of the unsecured debts, secured debts को तो नहीं उड़ा सकते, unsecured debts को उड़ा सकते हो. Allowing the debtor to start his life again afresh, but subject to any entry, subject to an entry in the credit history. तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी. तुम देखोगे कितने सारे क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सकते, सिबिल की वेबसाइट होती है, वहां पे तुम तुम्हारा क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सकते हो. समझ में आया ये? सो लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश इट क्विकली. नाउ सेक्शन 80 to 93 of part 3 deals the dater can apply, eligible daters can apply to adjudicating authority, okay, for discharge from certain debts. यार माफ करो, discharge, release me from my liabilities, and not exceeding a certain threshold, and he can start again without a liabilities. So it's very good provision. Now fresh start process, again इसका objective देखो, has been conceptualized for persons who are owning relatively less amount of money. तो they owe, मतलब उनका debt amount बहुत कम है, and have no income to repay their debts. They are stuck in the debt trap. So we might be talking of farmers, kind of small borrowers. Discharge from the qualifying debt, and the debtor should not be required to pay the amount comprising in the as a qualifying debt. तो जो भी qualifying debt हो गया, मतलब जो qualified है माफ करने के लिए, उसको वो सब पैसा नहीं देना पड़ेगा. तो समझते ये qualifying debt है क्या. तो पहला सेक्शन तो तुमको पता होना चाहिए, सेक्शन 79 subsection 19, what is a qualifying debt? Qualifying debt is a debt which can be waived off. तो is means an amount due, includes the interest, okay, but does not exclude 3 things: excluded debt, secured debts, and debt which has been incurred 3 months prior to the date. मतलब अभी लोन लिया और अभी आ रहा है तो वो भी नहीं रहेगा. विद इन पास्ट 3 months में अगर लिया होगा तो यू कैन नॉट. नाउ व्हाट इज सिक्योर्ड डेट?
उसका सेक्शन वापस यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 79 सबसेक्शन 15. सो 79 सबसेक्शन 19 भी जानना है and 79 subsection 15. What is a secured debt? You can mark it as important, they can ask you. So these debts cannot be waived off. A fine imposed by the court, damages for negligence, any student loan, maintenance देना है husband को wife को, तो ये सब waive off नहीं कर सकते. Eligibility. Now you tell me who is eligible to make. Now we are going in order wise. Section 81, 82, all of this यही होगा provision. Dater application करेगा. Okay, we'll see what is the process. First is eligibility for making an application. Who can make an application? Dater or creditor? So a dater shall be entitled to make an application. Now dater में अप्लाई पर्सनली खुद अप्लाई कर सकता है और थ्रू अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि अभी अपने को ये सब पता है आईबीसी के लॉज और वो सब, थोड़ी उसको पता होगा जिसने 35,000 का कम से लोन लिया है और उसका रीपे भी नहीं कर सकते, तो किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट्स. इफ मार्क करो, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 80. अब उसमें इफ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई. सो सेक्शन 80 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी. 3 थ्रेशोल्ड्स है, 60,000, 20,000 एंड 35,000. तो एनुअल इनकम उसकी इतनी है, एसेट्स इतने हैं, और ये नॉट एक्सीडिंग ऑल दे, तो छोटा बंदा है. ही इज नॉट बीन an undischarged insolvent, he doesn't own a dwelling house, घर वर नहीं है, तो he can opt. Let's see. Then further, application can be filed for fresh start process. Now application is filed, eligibility was given under section 80, 81 के अंदर दिख रहे, वो application फाइल करें. नाउ अंडरस्टैंड, जैसे एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सोचो मैं वो इंसान हूँ जिसने छोटा सा लोन लिया है, मेरी ज़्यादा इनकम भी नहीं है, एसेट्स भी नहीं है, तो मैं डीआरटी में जाता हूँ और डीआरटी में बोलता हूँ भाई ये एप्लीकेशन पकड़ो, आपने ये प्रोविजन बनाया है, मेरे को प्लीज़ मेरे डेट ट्रैप से माफ़ कर दो, रिलीव मी, डिस्चार्ज मी फ्रॉम माई डेट्स. तो जैसे मैं एप्लीकेशन देता हूँ, ऑटोमेटिकली एक इंटरिम मोराटोरियम डिक्लेयर हो जाता है. इंटरिम मोराटोरियम क्या होता है? अ स्टे ऑर्डर. उस दौरान मेरे को कोई परेशान नहीं कर सकता, मेरे एसेट्स नहीं बेच सकते, कोई लीगल प्रोसीडिंग सब हॉल्ट पे आ जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा, एक टाइम प्लीज जैसा हो जाएगा. नाउ अब ये इंटरिम मोराटोरियम रहेगा कब तक? सो इंटरिम मोराटोरियम विल बी वैलिड जब से मैंने केस फाइल किया तब से चालू होगा, और जब तक ये एनसीएलटी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करती है वो एप्लीकेशन. क्योंकि मैंने जैसे एप्लीकेशन फाइल किया, अब सॉरी डीआरटी हैज टू डिसाइड वेदर मैंने फाइल कर दिया केस टिल द टाइम इट इज एडमिटेड और रिजेक्टेड बाय द डीआरटी. इंटरिम मोराटोरियम पीरियड विल बी डिक्लेयर्ड. क्लियर? एवरीथिंग एल्स विल बी स्टेड एंड क्रेडिटर्स कांट इवन टेक एनी एक्शन. ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा मेरे को एप्लीकेशन में. क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं? कॉमन सेंस है, लोन कितने का है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, इंटरेस्ट कितना भरना है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, लीगल प्रोसीडिंग्स, ऑल ऑफ दैट आई हैव टू टेल. नेक्स्ट, जैसे मैं एप्लीकेशन करता हूं, वेयर डू आई डू एन एप्लीकेशन? कैन यू टेल मी? टू विच कोर्ट? I make it to DRT. Then DRT will appoint a resolution professional. DRT appoints a resolution professional. अब वो resolution professional क्या करेगा? जैसे अपॉइंट करते हैं, जैसे अपॉइंट किया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो इसका टाइमलाइंस है 7 days एंड देन आईबीसी. तो डीआरटी जैसे एप्लीकेशन जाता है 7 दिन के अंदर आईबीबीआई को बोलते हैं कि भाई ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सही है या आप कोई रेकमेंड करो. तो विद इन 7 days मेरे को एप्लीकेशन मिला ना, नेक्स्ट 7 days के अंदर ही मैं आईबीबीआई को कांटेक्ट करूंगा और आईबीबीआई को बोलूंगा कि भाई
कोई बताओ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो ये काम करेगा. इन द नेक्स्ट 10 days IBBI will reply and give me the name of the resolution professional. Now, examination of application by resolution professional. अभी मेरे को DRT को बता दिया कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, मैंने अपॉइंट कर दिया, तो अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बैठा है. क्या लगता है क्या करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बैठ के? What will he do? He will prepare a report. In his report, so within 10 days of his appointment, the resolution professional will prepare a report containing all the facts, whatever he feels, okay, and he will give it to the adjudicating authority, that is your DRT. तो DRT को चले जाएगा. फिर DRT, that is within 14 days, in the next 14 days from receiving the report, from date of submission of report by the resolution professional, will either pass an order for admitting or rejecting the application. तो जैसे एप्लीकेशन फाइल किया डेटर ने, इंटरिम मोराटोरियम डिक्लेयर हो जाता है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक रिपोर्ट बना के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देंगे कि भाई आप बताओ एक्सेप्ट करना है कि नहीं. अभी देखते हैं, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर दिया एप्लीकेशन तो किसको अफेक्ट होगा, किसको शॉक लगेगा? हु वुड नॉट वांट दिस एप्लीकेशन टू बी एक्सेप्टेड? द क्रेडिटर. सो अ कॉपी, ओके, विल बी गिवन टू द क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स को दे देंगे तो देखेंगे वो क्रेडिटर्स फिर ऑब्जेक्ट करेंगे इसको. नाउ ऑन एडमिशन दो चीजें होती है, जैसे मैटर एडमिट होता है दो चीजें हो जाएगी, एक है मोराटोरियम डिक्लेयर होगा और दूसरा है क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट कर पाएंगे. तो एक फ्रेश मोराटोरियम पीरियड आएगा और ये मोराटोरियम पीरियड जो होगा, मोराटोरियम एक नया स्टे ऑर्डर आएगा और उसके 180 दिन तक वैलिडिटी रहेगी इसकी. 180 दिन के अंदर पूरा मैटर क्लोज करना है उनको. सो अ फ्रेश मोराटोरियम पीरियड विल बी डिक्लेयर्ड एंड इट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days within which they have to close all the application, like they have to finish off whatever it is. So commencement of moratorium shall commence once the DRT accepts the application. Effect of moratorium will have the same, everything will be at a halt. During moratorium the debtor shall not act as a director, shall not try to alienate the assets, shall inform his business partners that फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चालू हो गया उसके अगेंस्ट. ही विल हैव टू इन्फॉर्म व्हेन ही इज एंटरिंग इनटू एनी हाई वैल्यू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. ही विल हैव टू डिस्क्लोज हिज नेम in which he enters in business transactions. He'll have to inform what all business transactions, and he shall not travel outside India. This entire moratorium will be valid for a period of 180 days. Next, obviously जैसे I told you all, admit कर लेती है DRT on report, they admit it, तो moratorium declare हो जाएगा, stay order for 180 days और creditors को object करने का time मिलेगा. Now creditors within 10 days from receipt of the order under section 84 can object on the following grounds. सिर्फ दो ही grounds दिए object करने के लिए. Creditors क्या बोल सकते हैं कि भाई मेरा debt include करो ताकि level बढ़ जाए, या incorrectness of the details. So if the debtor is there and I am the lawyer for the creditor और मैं चाहता हूँ ये application reject हो जाए, तो मैं कौन से सेक्शन में देखूंगा? सेक्शन 86 में मैं दो चीज बोलूंगा, या तो 35,000 से ज्यादा अमाउंट दिखा दो लोन, इंक्लूजन ऑफ डेट कि ये भी अमाउंट ऐड करो, ये भी अमाउंट, तो जैसे इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट he will be ineligible for opting for this fresh start process. Or second, I prove that he has given material omissions, material misstatements, incorrectness of details. Then only the application can be rejected. Now let's see. Application against the decision of resolution professional. So if anyone is unhappy, the creditor or the debtor is unhappy with the working of the resolution professional, they can appeal to the adjudicating authority. अब क्या है बोल सकते कि मेरे को बराबर सुने नहीं,
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, फ्रॉड कल्यूड कर रहे हैं वो लोग, दे आर कल्यूडिंग, दे आर यू नो हैविंग सेपरेट ट्रांजैक्शंस, they are doing fraudulent transactions, or the resolution professional has not complied with the requirements. General duties of the dater की क्या जिम्मेदारी रहेगी? To give all information. He should inform if he has made any error, or if there is any change in any financial circumstances, he should immediately inform. Replacement of resolution professional. If for any reason we feel that we need to replace it, again same logic you apply to the adjudicating authority. Adjudicating authority will tell IBBI कोई भेजो कोई नाम, and IBBI 10 दिन के अंदर नाम भेजेगा. Now directions for compliance of restrictions means what? कल उठ के डेटर नहीं सुन रहा है, नहीं करूंगा मैं, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलेगा भाई करना क्या है इसका, व्हाट टू डू व्हेन ही डजंट कोऑपरेट विद मी. सो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर directions. He may apply, okay, in case of non-compliance by the debtor, or in case of non-compliance by the debtor in compliance of his duties. So अगर वो नहीं सुन रहा है तो what to do he can ask. Now once NCLT has the DRT has accepted the application, ठीक है, उठा लिया कि भाई इसको माफ करना है, now they are saying माफ नहीं करेंगे, रिवोक करना है हमको. We want to revoke our order of admitting the application. Now when can it be done? Who do you think will not like this? The debtor will not like, because admission cancel हो रहा है. So a resolution professional may submit an application seeking revocation, cancellation on the following grounds. अब किस grounds पे cancel कर रहा है? That there is a change in financial circumstances which is making the debtor ineligible to a fresh start process. बंदा अमीर हो चुका है, लॉटरी लग चुकी है, non-compliance by the debtor, is not listening to me, or everything was a fraud, it was all malified, willful, coercion and everything that was there. So there was a collusion. Now next is the happiness, the peace that they will get, a discharge order. A discharge order is when the DRT releases the debtor of his debts, and that will be at the end of the moratorium. That's how it ends. So provides that a passing of a discharge order by the adjudicating authority at the end of the moratorium period. It will provide for discharge of penalty, interest, any other sum. The resolution professional shall prepare a final list कि क्या क्या माफ करना है just 7 days before the moratorium. 7 दिन पहले just moratorium के पहले भेज दो एक final list, तो हम उसको माफ कर देंगे. And the discharge will be of penalty, interest and any sum. And the resolution professional shall always adhere to the code of conduct. And we are done with the chapter. Now in this, the timeline, I have just made a small this. The timelines are here. You can take a photo of this. So I'll tell you. Now, okay. So here what is happening under section 180, application is being filed. Then the DRT में जब एप्लीकेशन करते हैं ऑटोमेटिकली इंटरिम मोराटोरियम पीरियड डिक्लेयर हो जाता है. इंटरिम मोराटोरियम पीरियड कब तक वैलिड रहेगा? टिल द फाइलिंग ऑफ द केस, टिल इट इज एडमिटेड और रिजेक्टेड बाय द DRT. देन DRT के पास में जैसे गया, इट विल गो टू IBBI विद इन 7 days कि भाई प्लीज रेकमेंड अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. So DRT will talk to IBBI. IBBI will then revert to DRT, recommending the name of the resolution professional in the next
10 days. तो 2 डेट्स याद रखने हैं, एक है तुम्हारा 7 days और दूसरा है तुम्हारा 10 days. एक बार डीआरटी ने अपॉइंट कर दिया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल देन प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड सेंड इट टू द डीआरटी. ओके, ही विल सेंड अ रिपोर्ट विद इन 10 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. डीआरटी को जैसे रिपोर्ट गया, विद इन द नेक्स्ट 14 days डीआरटी विल पास एन ऑर्डर ईदर टू एडमिट द एप्लीकेशन और टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन. जब डीआरटी एक्सेप्ट कर दी गई एप्लीकेशन तो दो चीजें होगी, एक मोराटोरियम पीरियड डिक्लेयर होगा कि 180 days तक स्टे ऑर्डर, और कॉपी टू द क्रेडिटर्स. तो जैसे क्रेडिटर्स को जाएगा तो इन द नेक्स्ट 10 days क्रेडिटर्स कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन. ऑन एक्सेप्टेंस द क्रेडिटर्स कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन. टू थिंग्स, दैट इंक्लूजन ऑफ अ डेट, इंक्लूजन ऑफ अ डेट कि भाई ये मेरे लोन ऐड करो उसमें, और इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स पॉइंट आउट करेंगे वो, उस बेसिस पे ही वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. और डेटर्स ने ऑब्जेक्ट किया, डीआरटी सब कुछ सुनेगा. जस्ट बिफोर द मोराटोरियम एंड्स, 7 days बिफोर द मोराटोरियम एंड्स, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल प्रिपेयर अ फाइनल लिस्ट ऑफ डेट्स. फाइनल लिस्ट बनेगा ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स कि क्या क्या है, एंड देन डीआरटी विल देन गिव अ डिस्चार्ज ऑर्डर. डिस्चार्ज ऑर्डर दे देंगे तो ही विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल द liabilities and responsibilities. Now one more thing, if you see all the sections in order, so we are seeing all the sections in order. That is it. So we'll be doing only this much, rest we'll do later on.